It's June already, and many of you have already wasted your 2 months, and now you are regretting it. Regret बनता है. But what's the solution now? अब करना क्या है? Right? If you really want to score 100 out of 100 in your science board exam, then you need to watch this video till the last, because I promise you, if you watch the video till the last, follow the strategy or the roadmap I'm going to provide you in this video, for sure after half yearly you would have ample amount of time left for all the revision, PYQs, sample paper, 3-hour slot, analyzing mistake stuff. So make sure that you watch the video till the last in order to score 100 out of 100 in your science board exam, and believe me, this would be your best decision. This video is going to contain all the information that you need for your science subject, as well as, yeah, watch the video till the last, subscribe the channel, be consistent with your studies, okay, and follow the plan. Now, let me give a brief introduction. I myself have scored 90 out of 100 in my class and science board examinations, but a thing to be noted, science was one of my weakest subject. Like, I have never ever scored from my class 6 to 9th or even in 10th pre-boards half yearly, never ever scored above 70 out of 100 in my science subject, and 90 after scoring 60 or 50 in my pre-boards was a great number for me. So I myself have scored 90 out of 100 in my science board exam, and I have guided many students in the past 3-4 months who have scored above 95, 92, 90, 98 in their science board exam. And here is one of this here is one example. This girl has scored 98 out of 100 in science, and इसने मेरे को email भी भेजा था, comment भी किया था. So you all can trust on me. And now let's start without wasting much time. And but please make sure that you subscribe the channel, because देख रहे हो पसीना देख रहे हो, गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, because if I turn on the fan बहुत ज़्यादा. So let's start with the mistakes first. देखो, आप लोग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो, and it's very important for you all that you first stop making the mistakes and then start to follow the right strategy. ठीक है? The first one is a very common mistake, and it is done by a lot of 10th graders. बहुत सारे average बच्चे गलती करते हैं, which is neglecting diagrams and activities. टॉपर्स को ये चीज पता है, दैट्स वाई फ्रॉम द स्टार्टिंग द फोकस ऑन डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज. ठीक है, आप समझ रहे हो. एंड 2 सेकेंड. सो आफ्टर सीइंग द 25-26 सीक्वेंस, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि सीबीएसई को जहां मौका मिल रहा है वो 1 मार्क्स आधा मार्क्स के लिए घुसा ही रहा है डायग्राम और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को. सो यू शुड टेक इट सीरियसली इफ यू डोंट वांट टू लूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स. एंड इफ यू वांट टू लूज, नेग्लेक्ट करो, आराम से मार्क्स कटेंगे आपके, हर जगह मार्क्स कटेंगे, एमसीक्यू में कटेंगे, केस बेस में कटेंगे, 3 मार्कर में कटेंगे, बस मार्क्स ही मार्क्स कटेंगे. ठीक है, टेक इट सीरियसली. सेकेंड, मेमोराइजिंग विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. यानी मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने खुद सॉल्ट्स इसी टाइम का बात है, मतलब यही जून जुलाई में पीरियोडिक टेस्ट 2 के लिए मैंने सॉल्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एक बार भी पढ़े हुए रट लिया, एग्जाम मैंने दे दिया. एग्जैक्ट 6 से 7 दिन बाद मैं पूरा भूल गई, 0. एंड वही मैंने बोर्ड्स के टाइम पे मतलब जान में अच्छे से समझ के याद किया, तो मुझे अभी तक याद है. देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है रट लूंगा तो 10 मिनट में हो जाएगा, ऐसे समझ के जाऊंगा तो 2 दिन लगेगा. 2 दिन लगाओ, अभी टाइम है, अभी 2 दिन लगाओगे चलेगा. अभी का ये 2 दिन आगे के 8 महीना काम आएगा. ठीक है, आधा घंटा के लिए आप पूरा 10th का रिजल्ट बर्बाद नहीं कर सकते हो. अगर आपको नहीं कोई भी डेफिनेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डायग्राम, एनीथिंग इन द साइंस बुक आपको नहीं समझ आ रहा है, वन शॉट्स का हेल्प लो. अलग सर, प्रशांत भैया, दिगराज सर, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, सॉरी रक्षक सर, समृद्धि मैम, वन शॉट्स की हेल्प लो. किसी बैच में आपने एनरोल किया तो वहाँ से पढ़ो, चैट जीपीटी का हेल्प लो, यूट्यूब से पढ़ो, एनसीईआरटी बुक्स यूज़ करो, डिफरेंट सोर्स, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, ओसवाल की बुक्स यूज़ करो, पढ़ो, समझो. जब एक बार समझ आ जाए कि हाँ सॉल्व्स पीएच, ठीक है, देन यू लर्न इट, देन उसका डेफिनेशन इजीली भी याद होगा और बहुत लंबे समय तक याद भी रहेगा. थर्ड, वन नाइट स्टडी. इट सीम्स कूल, फ्लेक्स करने के लिए अच्छा लगता है कि एक रात में पढ़ के इतना आ गया. बिलीव मी, इट्स नॉट. 11-12 में तो बहुत गलत, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा आप लोग का. बट स्टिल इन 10th ऑल्सो जितना हो सके प्री बोर्ड्स और पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी ट्राई करो कि एक रात वाला चीज़ ना हो, पहले ही पढ़ के सब खत्म कर दे. बस एक रात, मतलब रात को भी ना जगना पड़े, बस रिवाइज करके सो जाए, सुबह उठ के आई एम ऑल रेडी. फोर्थ, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. यही लाइक यू नो व्हाट, मैंने तो पूरा क्लास 10th आई हैड नॉट प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था फिजिक्स बायोकेम में. एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, बिकॉज इन जैन मंथ पूरा मेरे को बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना पड़ा था. सो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एक ही सूत्र है, क्वेश्चन प्रैक्टिस. लाइक इफ यू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, ओसवाल, एनसीईआरटी, कॉम्पिटेंसी बेस, सब करोगे, फोड़ के आने वाले पेपर आप. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड पार्ट. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. देखो, I always repeat, maths and science is all about concept clarity, and especially for class 10. SST is also about concept clarity, but class 10th हो जाता है. But
मैथ्स एंड साइंस आप विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बहुत बुरा हाल हो जाएगा आप लोग का। सो प्लीज़ 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 जहाँ से हो सके चैट जीपीटी, वन शॉट्स, बुक्स, डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है, एस चंद यूज़ करो, ओसवाल का यूज़ करो, क्या कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, जैसे भी हो सकता है, वन शॉट, एनिमेशन, चैट जीपीटी, गूगल, कोई भी वेबसाइट से पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हाँ ये है, हार्ट का ऐसा ऐसा है, ठीक है। देन उसके बाद से जो आपको समझने पहले समझो, आपको हिंदी में समझ आए हिंदी में लिखो, समझो, तब उसको इंग्लिश में लर्न कर लो। भले भले लर्न करना है सबसे लास्ट टॉपिक को, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज फर्स्ट थिंग। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में खुद से भी बना के लिख सकते हो, एग्जाम्स में स्कूल के खुद से भी बना के लिख सकते हो, बस एक बार कीवर्ड्स याद कर लेना। थर्ड पॉइंट इज द स्किल ऑफ मास्टरिंग एनसीईआरटी। बिलीव मी, साइंस के लिए एनसीईआरटी इज गॉड, लाइक एक लेवल है, अगर आपने उस लेवल पे एनसीईआरटी को कवर कर लिया, हर एस्पेक्ट से मैं आपको समझाऊंगी कैसे, हर एस्पेक्ट से अगर आपने एनसीईआरटी को कवर कर लिया, आपका लिटरली बायो में और केम में एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। एंड फिजिक्स इज अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो ठीक है, अगर आपका मैथ्स खराब है तो आपको मैथ्स में पे काम करना पड़ेगा, बट फिजिक्स एंड केम में तो एक मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर आपने एनसीईआरटी को जिस वे में मैं बता रही हूँ आपने कवर कर लिया तो, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी कन्फेस अ वेरी स्मॉल थिंग। देखो प्लीज इग्नोर माई स्वेटी फेस एंड स्वेटी हेयर, क्योंकि इट्स ऑलरेडी रात का 2 बज रहा है एंड आई एम शूटिंग इट नाउ, क्योंकि रात में मतलब मेरा घर रोड पे है, बहुत व्हीकल्स के वॉइस आती है, अभी भी आएगी शायद से, देखते रहे सुनते रहना। तो इसलिए मैं रात को शूट कर रही हूँ, मैं पंखा नहीं चला सकती क्योंकि वॉइस आएगा, ठीक है। और मैं पिछले आधा घंटा से 1 घंटा से शूट कर रही हूँ, मेरे 34th रीटेक होगा, क्योंकि वही जब मैं बोल रही हूँ तो टैटू हो जा रहे हैं, फिर मैं ही कभी कभी वो भूल जा रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना मेरे से हो सकता है। मैंने पंखा बंद किया, मैं 1 घंटा से शूट कर रही हूँ, अब मैं रात को शूट कर रही हूँ। अब इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफ़ी ट्राई करूँ बट नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ इग्नोर माई स्वेटी हेयर एंड स्वेटी फेस, ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। हाँ, थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी। देखो बायो में और केम में एनसीईआरटी का एक लाइन आपको नहीं छोड़ना है। अगर मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बायो है, एनसीईआरटी का बायो, फिर केम, फिर फिजिक्स, ठीक है। बायो में तो एक एक लाइन नहीं छोड़ना है, जैसे नीट वाले बच्चे नहीं बायो को पढ़ते वैसे आपको पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायो में तो सीधे उठ के आते हैं बस। सेकेंड केम में थोड़ा सा एक्टिविटी खाली वो दे देते हैं ना बुक में, आपको खुद से उसका क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने पड़ते, बनाने पड़ते, ठीक है, वो बस अलग से। बाकी केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी इज वेरी 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 यूजफुल एंड हेल्पफुल। फिजिक्स का तो मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने बस उसके क्वेश्चंस को किया था, इनसाइड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन एंड आउटसाइड बैक एक्सरसाइज, बस। मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बट अभी आपके पास टाइम है, आप फिजिक्स का भी एनसीईआरटी करोगे, ठीक है। आपको अब क्या करना है, आपने वन शॉट देखा, ठीक है, आपने समझ लिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका हो गया। अब आप करोगे एनसीईआरटी रीडिंग। एक बार आपने ऐसे ही किया, दूसरी बार आप बनाओगे बुक नोट्स, ठीक है। बुक नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू माई बुक नोट्स, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जैन से पूरा सिलेबस स्टार्ट किया था, मतलब 0 से सिलेबस स्टार्ट किया था मैंने साइंस का, और मैंने 90 स्कोर किया 1 महीने के अंदर सिलेबस कैसे मैंने कंप्लीट किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब। तो जो सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प किया वो मेरे बुक नोट्स ने किया है मेरे को। बुक नोट्स आर अ लाइफ सेवियर। आप कॉपी बना रहे हो स्कूल, वो सब सही है, लेकिन बुक नोट्स प्लीज़ वो बना लेना। मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी कि कैसे बनाना है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाना है तो मैं एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगी उसके लिए, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। बुक नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुक नोट्स बनाना, ठीक है। थर्ड, आपने वन शॉट देखा, आपने एनसीईआरटी रीडिंग किया, आपने बुक नोट्स बनाया। अब आपको इनसाइड क्वेश्चंस, जिसको मैं ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस बोलती हूँ, जो ब्लू कलर के इंक से लिखे होते हैं, और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, दोनों को आपको बहुत अच्छे से करना है। बायो को तो बहुत अच्छे से करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का, ठीक है। फिजिक्स में अगर आपका मतलब फिजिक्स में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपका आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना वहां से क्वेश्चन, तो एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी साइड बुक ओसवाल या कहीं से भी सैम्पल पेपर से आपके आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन। तो अंदर के सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से बना लेना है, जितनी बार बना सको। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो एक्टिविटीज दिए होते हैं वहाँ पे तो क्वेश्चंस देते नहीं है, लेकिन आप खुद से टीचर्स, मेरे तो स्कूल में टीचर्स लिखवाते थे, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक है तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपको एक्टिविटीज को घोल के पी जाना है, क्योंकि आपको पता है क्या, मैं बताऊँ, केमिस्ट्री में 98% ऑफ द पेपर एक्टिविटीज से आएंगे, 2% कहीं पीएच इधर उधर से आएगा, 98 या 95 to 98% एक्टिविटी से आएंगे। एमसीक्यू, 3 मार्कर, केस पे सब एक्टिविटी रहता है। एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से करना, आपका पूरा केमिस्ट्री एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करना है, बनाना कैसे है, इथेनॉल, ये सब जो भी है वो आप आगे पढ़ोगे, बट हाँ केमिकल रिएक्शन अच्छे से, एक्टिविटी 100 out of 100 इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। देखो डायग्राम मतलब डायग्राम ही नहीं होता, उससे आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। 25 का पेपर जाके देखना, ईगल वाला फ्लो चार्ट,
बहुत मतलब डायग्राम्स को भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। लाइक एनसीईआरटी का कोई एक कॉर्नर नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ दिया है। नाउ अगर आपको ये 100 जगह से नहीं करना है तो आप यू कैन परचेस दिस क्वेश्चन बैंक। दिस इज फॉर बैच 2027 ओसवाल का। इट कंटेन्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 2017 to 2026 strictly as per latest CBSE syllabus released on 22 April 2026, ठीक है। और 2026 के भी बोर्ड्स पेपर है फुली सॉल्व सारे सेट्स, तो आप इसके साथ जा सकते हो क्योंकि इट इज़ ट्रस्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द टॉपर्स। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने ये पूरा बुक एक बार सॉल्व कर लिया ना देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बस लास्ट में PYQs कर लेना। सो यू कैन परचेस दिस बुक एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड GLOW30, या फिर अगर आप अमेजॉन से बाय कर रहे हो तो मैं लिंक दे दूँगी, वहीं से बाय करना, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ऐप ये ऑफिशियल वेबसाइट www.oswal.com से बाय कर रहे हो तो आप GLOW30 कैपिटल में यूज़ करना, ठीक है। नाउ फोर्थ, चैप्टर वाइज प्रायोरिटी। देखो स्टिल इट्स जून, आपको तो सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है, बट स्टिल जैसे अगर आप अभी मान लो अगर आपने चैप्टर 2 के तो उसमें सॉल्व्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपने चैप्टर 1 के तो आपको कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करना है आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप चैप्टर अगर लाइफ प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन में जो है, हार्ट वाला जो है, जो इंपॉर्टेंट है आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप पढ़ो सारे चैप्टर्स क्योंकि अभी भी जून है, क्योंकि ये तो मैं बेसिकली लास्ट टाइम पे सजेस्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो, बट स्टिल अभी से करोगे आपको लास्ट में काम देगा। आप ठीक है आप सारा पढ़ो, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आप फोकस करो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, वो जो लास्ट में चार्ट बना हुआ है वो, इस पर ज़्यादा ध्यान देके पढ़ो, इन टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। फिफ्थ, PYQ इज सेवियर। PYQ को आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने एक बार सारा जब आपका लर्निंग पार्ट, रिविजन पार्ट सब हो गया है तो आपको PYQs पे जाना है। आई विल रिकमेंड 3 to 4 ईयर्स के करो अभी, ठीक है। 23, 24, 25, 26 इनफ है। सारे PYQ को करो। आप चैप्टर वाइज कर सकते हो, आप चाहो तो गूगल से भी ले सकते हो जाके selfstudy.com से, तो वहाँ पे तो आपको पूरा मिक्सचर मिलेगा जो सारे बुक का सारे चैप्टर्स का होता है। या फिर आप ये बुक खरीद सकते हो जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज PYQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं मेन मुद्दा है इसकी PYQs को नेग्लेक्ट नहीं करना है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए तो बहुत ज़्यादा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि साइंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। हलवा क्वेश्चंस तो मेरे को नहीं लग रहा है 25 में तो नहीं था, 26 में भी, मतलब जो पढ़ के गए थे उन लोग के लिए ईजी था, जो नहीं पढ़ के गए थे उन लोग के लिए हार्ड था, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो या तो आप ये वाला बुक ले सकते हो, ठीक है, इसमें चारों सब्जेक्ट्स साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। या फिर अगर आपको एकदम साइंस के लिए डेडिकेटेड चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस बुक लाइक ट्रू लव। मैंने तो पूरे 10th में, मेरे पास तो उस टाइम नहीं था ये, तो मैंने अपने फ्रेंड से मांग के फोटोज़ के पास था, प्लीज़ भेज दे, इस टॉपिक का भेज दे, उस टॉपिक का भेज दे। सो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट रह के पढ़ो, और मैंने जो पॉइंट्स बताया आप उसको फॉलो करो, ठीक है। लास्ट वाला एक जो प्रो टिप है, वीकली प्लानर बनाओ, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, आप रखो ऐसे, जैसे कि 10th जून से 17th जून तक आप 3 चैप्टर करोगे, एक केम के, एक फिजिक्स के, एक बायो का करोगे। 3 चैप्टर आप रियल नंबर और पॉलिनॉमियल्स रिवाइज करोगे और लीनियर इक्वेशन का 1 शॉट देखोगे और उस चैप्टर को कवर करोगे। इस पूरे वीक में आप SST का 2-3 चैप्टर करोगे, इंग्लिश का 1-2 चैप्टर रिवाइज करोगे। इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके, अगर आप एक हार्ड चैप्टर ले रहे हो तो एक ईजी चैप्टर ले रहे हो तो एक हार्ड चैप्टर, इस हिसाब से करके आप कर सकते हो। बट स्टिल फोकस ऑन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और NCERT। अभी के लिए यही 3 है। आगे टाइम जैसे जैसे जाएगा तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज आएंगे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनते हैं, बट अभी के लिए यही है। 1 शॉट पे से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, NCERT बहुत अच्छे से करो, और NCERT कर भी रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और भी ज़्यादा अच्छे से करो। और थर्ड, थ्रू वेरियस सोर्सेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओसवाल से हो गया, गूगल से हो गया, ChatGPT से हो गया, बुक्स से हो गया, NCERT एग्जाम्पलर से हो गया, हर जगह से ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कॉम्पिटेंसी बेस करो, सैम्पल पेपर करो, जो हो सकता है आपको आप करो, ठीक है। आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कीवर्ड्स का भी अभी से ध्यान रखो। तो इस वीडियो के लिए यही था, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट कर देना अपना डिजायर्ड मार्क्स, स्पेशली साइंस में, और आपको कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा फिजिक्स, केम, बायो कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।